Hi, in this video we are going to discuss measures of central tendency, and in that we are going to discuss the topic mode, and we are going to discuss mode by grouping method. So first we need to understand the concept of mode, that what is mode. So mode is nothing but it is the number of times a number is appearing in a given series. There is a series of numbers, there is a set of numbers given, and we have to find out which number is occurring the most number of times. That is mode. So we are going to solve or find out mode by grouping method. So here a question is given, x is given, and its frequency, which is named as f, that is given. So there is a series of numbers called as x. So it's 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. And its corresponding frequency is given, which is denoted by f, small f. And that is 3, 10, 20, 24, 25, 11, 10, 8, and 2. So total there are 9 numbers in the series given. So how to solve it? By grouping method. So we are going to form different groups, and we are going to draw different columns to find out different groups. So generally we are drawing totally 6 columns, and in that 6 column we are going to, our objective is to mark the most number of times any number is appearing. We are going to mark that. So the frequency column given here, f column, we consider it as first column. We consider it as first column. So we are going to draw another column, second column. We are going to do this. We are going to add first two numbers and make a group of that. So we are going to add first two numbers, so that is 3 and 10, which is equal to 13. So it's one group made. Now another number 20 and 24. तो हम दो का ग्रुप बना लेंगे 20 and 24, एंड इसका जो टोटल होगा वो होगा 44. बस हम दो का ग्रुप बनाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे उसको. सेकंड कॉलम में हमें यही करना है. नेक्स्ट टू नंबर्स आर 25 and 11, and its sum is 36. Then 10 and 8, their sum is 18, and there is only one number is remaining, 2. We will leave that. So now we will make another column, that is third column. What we are going to do in this third column? We are going to leave the first number, the 3, in the column 1. We are going to leave the first number 3, and after leaving the first number, we are going to make group of two numbers, just like we made the group in second column. So we will leave the first number 3, and we will make the group of 10 and 20, the second and third number. So 10 and 20, so it is 30. Then after 24 and 25, yes, so it is 49. इसके बाद 11 and 10, that is 21, and last number is 8 and 2, that is 10. So in this way we are going to frame another column, and we are going to write the numbers
by making the group of 3 numbers starting from very first number. सो अभी 3 नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे और उसको ऐड करके लिखते जाएंगे. सो हम 3 नंबर के ग्रुप बनाएंगे 3, 10 एंड 20. तो इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 33. उसके बाद नेक्स्ट 24, 25, 11. इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 60. उसके बाद 10, 8 एंड 2 लास्ट के 3 नंबर हैं. इनको यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20. नाउ वी विल मेक अनदर कॉलम, दैट इज 5th कॉलम. और इसमें हम वी विल लीव द फर्स्ट नंबर, and after that we will make group of 3 numbers. तो फर्स्ट पहला नंबर जो है 3 उसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद के 3 नंबर 10, 20 और 24, 10, 20, 24 इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54. देन 25, 11 और 10 नेक्स्ट 3 नंबर्स को यदि हम ऐड करेंगे 25, 11 और 10 तो ये हो जाएगा 46. अच्छा, 10 के बाद सिर्फ 2 नंबर बचते हैं, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, वी विल लीव दैट. नाउ नेक्स्ट 6th कॉलम, ये लास्ट कॉलम है, इसको हम बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले के 2 डिजिट, पहले के 2 नंबर हम फर्स्ट कॉलम के छोड़ेंगे और उसके बाद के हम 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे. तो पहले के 2 नंबर 3 और 10 वी विल लीव दैट. And after that 20, 24, 25 we will add that and make a group. 20, 24 and 25, if we will add that we will get 69. After 25, 11, 10 and 8, there are 3 numbers, इनका हम ग्रुप बनाएंगे और लास्ट में एक 2 रह जाएगा, इसको हम we will leave that. तो 11, 10 और 8 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29. नाउ हमारा ग्रुपिंग अब कंप्लीट हो गया है. नाउ व्हाट वी विल डू अ एनालिसिस अब हम करेंगे और इस एनालिसिस के लिए हमें या तो हम टेबल बना लें या हम उसको टैली से सॉल्व कर लें. तो लेट्स डू अ टैली and after that we will do a total. So let's do a tally. तो एक काम करते हैं कि जो X सीरीज़ में जो नंबर्स है, ओरिजिनल नंबर्स, उसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो शीट है मेरा, ये लाइनिंग वाला शीट नहीं है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए हम इन नंबर्स को एक बार दोबारा यहाँ पे लिख ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ठीक है. अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि हमने जो फर्स्ट कॉलम से सभी कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th कॉलम, सभी में जो हमने नंबर्स लिखे हैं हमारे इस सीरीज़, हर कॉलम एक मेरा एक सीरीज़ है, उसमें जो भी नंबर्स हैं उसमें जो हाईएस्ट नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है सबसे, उसको हम मार्क कर लेंगे, एनसर्कल कर लेंगे. सो वी विल डू अ डिफरेंट कलर. एक कलर हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे ब्लू वाला अच्छा लग रहा है. ठीक है, चलिए, वी विल एनसर्कल, सॉरी, आई थिंक देयर इज़ अ 25 इज़ द हाईएस्ट नंबर, 25. सो सबसे जो बिगेस्ट नंबर है फर्स्ट कॉलम में, आप देखिएगा कि वो 25 है. 25 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम X में जो हमारा नंबर है वो है 19. ठीक है, तो टैली वाले कॉलम में 19 के सामने हम टैली के लिए 1 लिख देंगे, 1. ठीक है, टैली के लिए हम 1 लिख देंगे यहाँ पे 19 के सामने. व्हाट वी विल डू, हम टैली का मार्किंग 1 कर देंगे, क्योंकि 19 एक बार हमारे फ्रीक्वेंसी में एक बार आ गया. ठीक है, अब चलिए सेकंड कॉलम में हम सबसे पहले एनसर्कल कर लेते हैं सभी नंबर को जो हाईएस्ट नंबर है.
तो कॉलम 2 में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 44, कॉलम 3 में द सबसे लार्जेस्ट नंबर इज़ 49, कॉलम 4 में 60 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, कॉलम 5 में 54 एंड कॉलम 6 में 69। तो नाउ हमने इनसर्कल कर लिया है। अब हम बस इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं उनके सामने वी विल मार्क द टैली। तो चलिए फर्स्ट कॉलम का हमने 19 हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि 25 हाईएस्ट नंबर था, उसके सामने 19 है, तो 19 के सामने हमने एक टैली मार्क कर लिया था। अब हमें सेकंड कॉलम में देखना है 44 इज द हाईएस्ट नंबर, और उसके सामने जो 44 किन नंबर से बना है, ये एक ग्रुप का नंबर है, ये बना है 20 और 24 से। तो 20 और 24 के कॉरस्पॉन्डिंग उनके सामने जो नंबर्स हैं वो हैं 17 और 18। तो 17 के सामने भी हम एक टैली मार्क करेंगे और 18 के सामने भी हम एक टैली मार्क कर देंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड कॉलम, 49 इज़ द हाईएस्ट, हमने इनसर्कल करके रखा हुआ है, और 49 किन नंबर से बना है, किन नंबर्स का टोटल है, वो है 24 एंड 25। तो 24 और 25 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो है 18 और 19। तो अगेन 18 एक बार और 19 एक बार हम फिर से टैली कर लेंगे। 18 के सामने एक टैली मार्क हम करेंगे और 19 के सामने भी एक टैली मार्क हम करेंगे। नाउ कमिंग टू फोर्थ कॉलम, देयर इज 60 इज द हाईएस्ट नंबर, एंड 60 इज मेड अप ऑफ, 60 is a group of numbers which is made up of three numbers 24, 25 and 11। 24, 25 और 11 से ये 60 बना था। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो हैं 18, 19 और 20। तो 18, 19 और 20 के सामने एक एक टैली मार्क हम अगेन यहाँ पे कर देंगे। 18, 19 के आगे भी एक टैली किया और 20 के आगे अभी तक नहीं किया था, तो एक टैली मार्क उसके आगे भी हम कर देंगे। सो हमारा फोर्थ कॉलम तक हमने फिनिश कर लिया है। नाउ फिफ्थ कॉलम, 54 इज़ द हाईएस्ट नंबर। उस 54 जिन 3 नंबर से बना है वो हैं 10, 20 और 24, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो हैं 16, 17 और 18। तो 16 के सामने एक टैली मार्क हम करेंगे, 17 के सामने भी एक टैली मार्क करेंगे, और 18 के सामने भी हम अगेन एक टैली मार्क करेंगे। नाउ द लास्ट कॉलम इज सिक्स्थ कॉलम, उसका जो हाईएस्ट नंबर है वो है 69, और 69 किन 3 नंबर्स का ग्रुप है, वो है शुरू के 2 नंबर छोड़ के हमने किया था, तो वो है 20, 24, 25, और उसके सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं वो 17, 18 और 19। तो 17 के सामने एक टैली मार्क हम कर देंगे, 18 के सामने भी एक टैली मार्क करेंगे, और 19 के सामने भी करेंगे। बट 18 में आप देखिएगा कि हमने 4 टैली कर लिया है, और जिनको टैली का एक रूल है कि जब 4 टैली हो जाए तो 5th टैली हम क्रॉस मारते हैं, ठीक है। तो ये 5 टैली हो गए, और 19 में एक हम टैली कर देंगे। सो नाउ आवर टैली इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट द टोटल इन फ्रंट ऑफ द टैली। तो भाई 16 के आगे 1 है टैली, 17 के आगे 1, 2, 3 3 है, 18 के सामने है 5, 19 के सामने है 4, और 20 के सामने है 1। बाकी नंबर के सामने कोई टैली नहीं है, हम उसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देंगे। तो आप देखिए कि इन सभी नंबर्स में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है 5, और ये किसके सामने आता है, ये आता है 18 के सामने, ठीक है। तो ये दिस लाइज ऑन द नंबर 18। सो आवर mode in this given problem is 18. So mode is equal to, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, is 18 in this given problem. So this is the answer. Hope it is understood. Thank you very much.